Good afternoon, sir. Good afternoon. Okay, in the last lecture, we started with the chapter that was magnetism, correct? So, in that chapter, what exactly have we learned? First thing, we learned about bar magnet. We said bar magnet has two poles. One is the north pole and other is the south pole. Okay, magnetic lines of force always travels from north pole of the magnet towards the south pole of the magnet. Then we said two magnetic lines of force never intersect each other. Okay, magnetic lines of force are crowded at the region where the magnetic field is strong, and they are far away from each other where the magnetic field is weak. Okay, this was the basic thing which we have learned. After that, we said the two poles of the magnet are not situated exactly at the ends of the magnet, but they are situated a bit inside, or they are shifted a bit inside. Okay, the distance of south pole of the magnet from the center of the magnet is taken as small l, chota l. Okay, and the distance of north pole of the magnet from the center of the magnet is again taken as chota l. So the distance between the two poles of the magnet is taken as 2L, and that is called as magnetic length of the magnet, correct? The total length of the magnet is called as geometrical length of the magnet. Okay, geometrical length of the magnet is always greater than the magnetic length of the magnet. And the basic formula to calculate the magnetic length is magnetic length is 5 by 6 into geometrical length. Okay, that is our standard formula. A line passing from the center of the magnet joining its two poles is called as axis of the magnet. A line drawn perpendicular to the axis of the magnet is called as equator of the magnet. Okay, the two poles of the magnet has some strength in it, so that is called as pole strength. Pole ka strength, that is pole strength of the magnet. So pole strength of the north pole is plus qm, and that of the south pole is minus qm. Okay, that was the basic thing which we have learned. Okay, प्लस क्यू नॉर्थ को बिकॉज नॉर्थ से ओरिजिनेट होता है लाइंस ऑफ फोर्स और साउथ पे जाके गिरता है, तो साउथ को माइनस दे दिया अकॉर्डिंग टू द बेसिक साइन कन्वेंशन. So this sign convention is only telling you the direction. Okay, magnitude तो दोनों का same रहेगा, that is qm. We said the basic unit of our pole strength is ampere meter. So ampere meter हम लोग का basic unit हो जाता है हम लोग का pole strength का. Once we were done with this, after that we shifted to another topic, and that was our magnetic flux. Correct. We said the number of lines of force passing through a given area is called as flux. Okay, तो हमने बोला flux phi is equals to magnetic induction into area, that is B into A. दोनों वेक्टर क्वांटिटी था, बीच में डॉट था, तो हमने बोला बी ए कॉस थीटा. करेक्ट. सो हमने बोला फाई इज इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा. हमने बोला फ्लक्स इज मेजर्ड इन वेबर्स. ओके, फ्लक्स को हमने बोला इट इज मेजर्ड इन वेबर्स. मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन इज फ्लक्स अपॉन द एरिया, सो वेबर पर मीटर स्क्वायर. वेबर पर मीटर स्क्वायर वी टोल्ड इट इज टेस्ला. ठीक है, वेबर पर मीटर स्क्वायर को नाम दे दिया हमने, दैट इज टेस्ला, दैट इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन. After that we shifted to the CGS unit, and the CGS unit was Gauss. We said 1 Tesla is 10 to the power 4 Gauss. Correct everyone? ठीक है, हम लोगों ने 1 Tesla बोला था, 10 to the power 4 Gauss. इतना तक ही किया था ना हमने लास्ट टाइम, किसके आगे भी किया था? नहीं सर, इतना ही इतना ही था ना. ओके, वेरी गुड. सो सबको याद है ये सब जो मैंने बोला? ठीक है. Now we are going to proceed to the further part of the chapter. Now the further part of the chapter is magnetic dipole moment. Okay, so next thing we are learning about magnetic dipole moment. Now what do you understand by magnetic dipole moment? Pay attention. We said if I'm going to consider a bar magnet, okay, a bar magnet is something like this. The two poles of the magnet are shifted a bit inside. According to the basic sign convention, we said इधर हम लोग नॉर्थ लेंगे और इधर हम लोग साउथ लेंगे, हाँ कि नहीं? ठीक है, इस साइड हम लोग नॉर्थ लेंगे और इस साइड हम लोग साउथ लेंगे. ठीक है, अभी हम लोग ने बोला था a line passing from the center of the magnet is called as axis of the magnet. Okay, now here the center of the magnet is taken as O. The distance of south pole from the center of the magnet is taken as L, and that of the north pole from the center is again taken as L. So the distance between the two poles is taken as 2L. ठीक है, तो ये हो जाता है हम लोग का दो पोल के बीच का डिस्टेंस, which is also called as magnetic length of the magnet. Fine. तो हमने बोला दो पोल्स के बीच का डिस्टेंस हमारा हो गया, that is 2L. अभी ध्यान दो, हमने बोला था मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जाता था नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक. अभी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का मतलब क्या? नाम समझो, मैग्नेटिक मतलब मैग्नेट, डाइपोल दो पोल, एक है नॉर्थ दूसरा है साउथ. मैग्नेटिक डाइपोल दो पोल ना, इसलिए डाइपोल बोल दिया. Moment, what do you understand by moment? Whenever force is applied at one side or one point,
and it gets transferred to the another point. It is called as moment. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे को दरवाजा खोलना है, ठीक है, अगर दरवाजा खोलना है तो क्या करूंगा, दरवाजा यहाँ से बंद रहता है ऐसा, मैं क्या करता हूँ, यहाँ से या तो दरवाजा खींचता हूँ या यहाँ से या तो धक्का मारता हूँ, हाँ कि नहीं। हम लोग का डोर यहाँ से हिंज रहेगा तो मैं या तो यहाँ से धक्का मारता हूँ या तो यहाँ से मैं पुल करता हूँ, दैट इज द वे वी ओपन अवर डोर। ओके, अभी अगर दरवाजा यहाँ से हिंज है तो क्या मैं यहाँ से धक्का मारता हूँ, नहीं ना, जहां से हिंज है वहां से धक्का नहीं मारता हूं, मैं यहाँ पे धक्का मारता हूं। मतलब क्या, माई फोर्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिस पॉइंट, फ्रॉम वेयर आई एम अप्लाइंग फोर्स टू द अदर पॉइंट एट द हिंज, करेक्ट। सो वेन एवर फोर्स गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, इट इज कॉल्ड एज मोमेंट। ठीक है, तो मोमेंट का मतलब क्या, एक जगह फोर्स लगाया और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस में जब फोर्स ट्रांसफर हो गया तो उसको हम लोग बोलते हैं मोमेंट। इतना समझा सबको, ठीक है। आइए ध्यान दो, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, दो पोल है, magnetic dipole moment is always directed from south pole of the magnet towards the north pole of the magnet। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हमेशा जाएगा फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया, दैट इज एम बार, हाँ कि नहीं, क्योंकि मैंने इसको डायरेक्शन दे दिया कि वो साउथ से लेकर नॉर्थ तक जाएगा। ओके, अभी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या है, साउथ से लेकर नॉर्थ तक गया, लेकिन कितना डिस्टेंस गया, 2L का डिस्टेंस गया। मतलब साउथ ने अपने पोल स्ट्रेंथ के मदद से एक फोर्स लगाया, किसके ऊपर, नॉर्थ के ऊपर, और कितने डिस्टेंस पे लगाया, 2L के डिस्टेंस पे लगाया, जिसकी वजह से क्या हुआ, हम लोग का मैग्नेट में मोमेंट आ गया। ओके, मतलब मैग्नेट घूम सकता है अपने ही एक नॉर्थ पोल के हिंज के हिसाब से। ओके, सो इट कैन एक्चुअली बी लाइक दिस। ओके, तो ऐसे जा सकता है वो। ओके, तो हम लोग का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। तो मैंने बोला मोमेंट इज एम बार इज इक्वल्स टू, किसकी वजह से मोमेंट लगा है, क्यू एम। ना पोल स्ट्रेंथ हम लोग मैग्नीट्यूड में ही लेंगे, डायरेक्शन में नहीं। इवन दो साउथ पोल इज अप्लाइंग, वी आर नॉट गोइंग टू टेक माइनस साइन, वी आर कंसिडरिंग ओनली द मैग्नीट्यूड नॉट द डायरेक्शन। फाइन, सो एम बार is equals to qm into the distance 2L bar, and that becomes the basic formula for nothing but our magnetic moment। ठीक है, तो अगर मेरे को सिंपली स्केलर में लिखना है तो m is equals to qm into 2L, डायरेक्ट मेरा स्केलर में इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, सो m is equals to qm into 2L। तो एक क्रॉस प्रोडक्ट में समझना है, मल्टीप्लाई किया है मैंने सिंपली। ओके, सो अभी मैंने बोल दिया मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज qm into 2L। अभी अगर मेरे को इसका यूनिट निकालना है, मैं इसका यूनिट कैसे निकालूंगा, इसका यूनिट्स रहेगा m इज इक्वल टू क्यू एम। मैंने पोल स्ट्रेंथ का यूनिट क्या बोला था आपको, पोल स्ट्रेंथ का यूनिट मैंने बोला था दैट इज एम्पियर मीटर, रिमेंबर। ठीक है, इनटू 2L, 2L इज नथिंग बट योर लेंथ, लेंथ किसमें मेजर होगा, आपका मीटर में। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट होगा दैट इज एम्पियर मीटर स्क्वायर। सो द बेसिक यूनिट ऑफ योर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज एम्पियर मीटर स्क्वायर। इतना दिमाग में बैठा सबके, यस एवरीवन, यस और नो। ठीक है, चलो वेरी गुड, कॉपी। सर वो एम किसको रिप्रेजेंट करता है? ये छोटा एम हाँ, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ये नीचे जो यूनिट्स वाला है मैं वो भी वही है, हाँ वही है, यूनिट के नीचे जो लिखा है। ये ना मैग्नेटिक डायपोल हाँ मोमेंट। सर बोलो। सर आपने वो फॉर्मूले में माइनस क्यू एम क्यों नहीं लिया? क्योंकि मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर कर रहा हूँ, डायरेक्शन हाँ नहीं। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट डायरेक्शन दिखा दिया है ना हाँ 12 को, कि वो हाँ सर। इधर से इधर जा रहा है, हाँ इसलिए उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया। हाँ सर।
बढ़ाना। सर बोलो। सर अगर नॉर्मली भी मैग्नेट अगर ऐसे ही रखा है तो भी उस पर डाइपोल मूवमेंट हाँ। रहेगा मतलब? डाइपोल मोमेंट तो रहता ही है उसमें, क्योंकि दो पोल्स तो है ही ना उसके पास, अच्छा हाँ सर हाँ। है ना। लेकिन होता क्या है ना, इसका और इसका दोनों का पोजीशन सेम होता है ना, हाँ तो इसलिए इतना मूवमेंट आपको दिखता नहीं है। लेकिन आप उसको अच्छा। एक्सटर्नल फील्ड में लेके जाओ तो आपको उसका मोमेंट दिखना चालू होता है, क्योंकि ये प्लस और माइनस तो एक दूसरे को बैलेंस करेगा ना, हाँ है ना। सर। हाँ थैंक यू सर। वेलकम। डन 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 Yes, sir, एवरीवन। done. चलो वेरी गुड। अभी ध्यान दो, एक बार ये मैग्नेट के बारे में हमने पढ़ा, ये मैग्नेट हुआ, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का, ठीक है। लेकिन हम लोग मैग्नेट के बाद और एक चीज में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, और किस में कर सकते हैं ध्यान दो। उसके बाद हम लोग करेंगे डायपोल मोमेंट इन कॉइल। कॉइल का मतलब एक वायर विद अ हेलिकल शेप, ठीक है। सोलेनॉइड पढ़ा था ना 10th में, इसको बोलते हैं कॉइल, ठीक है। अभी कॉइल में हम लोग मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकाल सकते हैं, क्यों? क्योंकि हम लोग ने पढ़ा था व्हेनेवर करंट इज पास थ्रू द कॉइल इट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। हाँ कि नहीं? 10 में whenever electric current is passed through the conductor it produces a magnetic field around it, yes or no? ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे Yes. कि जैसे हम लोग ने मैग्नेट में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पढ़ा है, वैसे ही हम लोग एक करंट कैरिंग कॉइल में भी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पढ़ सकते हैं। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे अगर मैं लूंगा एक कॉइल, दैट इज अ सोलेनॉइड, ओके। यहाँ पे मैं बोलूंगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ पे लगा दूंगा एक की। जैसे इसको ऑन करूंगा इसमें से करंट आई फ्लो होना स्टार्ट होगा। So current I starts flowing through the coil. As soon as the current I starts flowing through the coil, what will happen? Whenever current flows through a coil, it produces the magnetic field around it. It produces a magnetic field around it. पढ़ा रहेगा ना 10th में, जैसे ही करंट कैरिंग कॉइल है उसको रखा स्पेस में तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा मतलब दो पोल्स आ जाएंगे। कौन से दो पोल आएंगे? इधर आएगा नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, इधर आएगा साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट, ठीक है। इधर आएगा नॉर्थ पोल, इधर आएगा साउथ पोल। क्यों? प्लस है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इसके साथ साउथ पोल आएगा। क्यों? क्योंकि साउथ पोल खुद नेगेटिव है, तो नेगेटिव विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड पॉजिटिव विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव। तो नेगेटिव साइड नॉर्थ पोल आएगा, पॉजिटिव साइड साउथ पोल आएगा। अभी नॉर्थ पोल और साउथ पोल हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड ये जनरेट करेगा and magnetic lines of force will start traveling from north pole of the magnet towards the south pole of the magnet outside the coil. magnet नहीं coil बोलता हूँ, ठीक है। फ्रॉम द नॉर्थ पोल ऑफ द कॉइल टुवर्ड्स द साउथ पोल ऑफ द कॉइल आउटसाइड द कॉइल, एंड इनसाइड द कॉइल इट विल स्टार्ट ट्रैवलिंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। हाँ कि नहीं? अभी आप लोग देख रहे होगे मैंने अंदर कैसे बनाया है। अंदर मैं रिप्रेजेंट करूंगा बाय स्ट्रेट लाइन। अभी स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या रहता है? स्ट्रेट लाइन का मतलब रहता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या रहता है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मतलब इनसाइड द मैग्नेट और इनसाइड द कॉइल वी गेट अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मतलब सेम, ठीक है। स्कूल में सब लोग यूनिफॉर्म पहनते हैं ना, मतलब सेम है, सब लोग सेम कपड़े पहने। इन द सेम मैनर हम लोग बोलते हैं कि सीधा सीधा लाइन मतलब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मतलब हर जगह मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू सेम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? आउटसाइड द कॉइल इट विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल, इनसाइड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, आउटसाइड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ऐसे करके आपका मैग्नेटिक लाइंस मूव होना स्टार्ट हो जाएगा और आपका पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड आप लोग का जनरेट हो गया, अभी इसका मोमेंट हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? अभी इसमें भी मोमेंट तो आएगा, ठीक है। अगर मोमेंट आएगा तो मोमेंट को हम लोग वही बोलेंगे, दैट इज छोटा एम। सो मोमेंट छोटा एम इज इक्वल्स टू, अभी ये कॉइल के पास क्या है? कॉइल के पास है नंबर ऑफ टर्न्स। कॉइल के पास क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स। एक बार घुमाया तो सिंगल नंबर ऑफ टर्न, दो बार घुमाया तो दो, तीन बार घुमाया तो तीन, एन टाइम्स घुमाया तो एन नंबर ऑफ टर्न्स। हाँ कि नहीं?
ठीक है, n टाइम घुमाया तो n नंबर ऑफ टर्न्स, तो मैं बोलूंगा n से पहले मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो n मैं बोल दूंगा दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, उसके बाद हम लोग का करंट फ्लो हो रहा है ये वाले कॉइल से, हाँ कि नहीं? ठीक है, तो मैं करंट भी लिख दूंगा I। ठीक है, तो I का मतलब हम लोग का रहेगा दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। और ये पूरा का पूरा नंबर ऑफ टर्न्स और इलेक्ट्रिक करंट कहां से फ्लो हो रहा है? द इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग थ्रू द एंटायर एरिया ऑफ द कॉइल। पूरे के पूरे कॉइल के एरिया में से ये पूरा का पूरा करंट फ्लो हो रहा है। अगर पूरे के पूरे एरिया में से फ्लो हो रहा है तो मैं बोलूंगा ए। तो ए का मतलब दैट इज एरिया ऑफ अ कॉइल। तो हम लोग को मैग्नेटिक मोमेंट का, डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या मिल गया इन अ कॉइल? इट इज एन आई ए। क्या है हम लोग का फॉर्मूला? एन आई ए, निया। ठीक है, सो निया इज अवर बेसिक फॉर्मूला फॉर अवर कॉइल और अ सोलेनॉइड। इतना समझा? ठीक है, तो अगर हम लोग का ये बेसिक फॉर्मूला हो गया दैट इज निया, अभी इसका देखते हैं डायमेंशनली ये वाला फॉर्मूला करेक्ट है कि नहीं। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज डायमेंशनली करेक्ट हो गया तो हम लोग बोलते हैं डायमेंशनल एनालिसिस से वो दो फॉर्मूला सिमिलर है। याद है? टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द गिवन इक्वेशन, चेक करते थे ना करेक्टनेस फर्स्ट चैप्टर में, तो चेक करते हैं, इसका यूनिट्स निकालते हैं। तो मोमेंट का यूनिट्स, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर का तो कुछ यूनिट होता ही नहीं है, वो तो नंबर है। ठीक है, तो कुछ इसका यूनिट नहीं। करंट आई, करंट आई का यूनिट क्या होएगा? एम्पियर। करेक्ट, क्या रहेगा यूनिट? एम्पियर। और एरिया है, एरिया का यूनिट क्या रहेगा अपना? मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे एम्पियर मीटर स्क्वायर। मिला पहले जैसा यूनिट। ठीक है, हम लोग का मैग्नेट का भी क्या था? एम्पियर मीटर स्क्वायर, इसका भी क्या आया? एम्पियर मीटर स्क्वायर। मतलब दीज टू फॉर्मूलाज आर डायमेंशनली करेक्ट। मतलब हम लोग मैग्नेट के लिए यूज करेंगे पोल स्ट्रेंथ इनटू द लेंथ, मैग्नेटिक लेंथ। और हम लोग कॉइल आ गया तो इसके लिए यूज करेंगे एन आई ए, दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट इनटू एरिया। एम आई क्लियर? यस एवरीवन, छापो। डन 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 हुआ सबका? एक्सक्यूज मी। अच्छा, करो करो, 2 मिनट रुक जाते हैं।
Okay. फाइन. अभी हमने अपना बेसिक बेसिक फॉर्मूला तो पढ़ लिया. अभी हम लोग डेरिवेशन में जंप करेंगे. ठीक है. अभी जो पहले दो डेरिवेशन हम लोग देखेंगे ना, वो एक्चुअली है बहुत इंपॉर्टेंट. बट आपके टेक्स्ट बुक में क्या किया ना, उसका सिंपली फॉर्मूला दे दिया, डेरिवेशन किया नहीं है. लेकिन आप लोग जब पीछे एक्सरसाइज पार्ट में जाओगे, समरी पार्ट में जाओगे, देन आप लोग को दिखेगा कि इसका डेरिवेशन की आपको जरूरत है. ठीक है. तो न्यूमेरिकल्स और इसमें भी जाओगे तो डेरिवेशन की जरूरत एक्चुअली है. प्लस ये वाला चैप्टर ना, आप लोग टेक्स्ट बुक में देखोगे एक येलो कलर का टेबल मिलेगा आपको, जहाँ पे इसको हमेशा ना इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कंपेयर किया होगा, ये वाले चैप्टर को. ठीक है. देखना लेक्चर के बाद आपको मिलेगा, अभी मत देखना चालू करो, लेक्चर के बाद देखना. आप लोग को एक येलो कलर का टेबल मिलेगा जहाँ पे इसको हर एक पॉइंट पे ना इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कंपेयर किया होगा, कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई का ये फॉर्मूला है तो मैग्नेटिक फील्ड बी का क्या फॉर्मूला है, अगर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या है. So these two chapters or these two things, electric field and magnetic field, are always compared with each other. Okay. अब मैं जो डेरिवेशन करने जा रहा हूँ ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के इसमें है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो चैप्टर पढ़ोगे ना, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ोगे, तो उसमें ये वाला दो डेरिवेशन होंगे. लेकिन इसमें क्या कर दिया ना, ये लोग ने स्किप करके डायरेक्ट वो वाला फॉर्मूला दे दिया. बिकॉज व्हाट दे थिंक इज कि आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कर लिया है, सो यू आर स्मार्ट इनफ कि वही वाला सेम रिटेन कर लोगे, वैसे टाइप का डेरिवेशन, और इधर यही वाला आंसर निकाल दोगे. तो इन लोगों ने टेक्स्ट बुक में कैसे मैनर में दिया है कि सिर्फ फॉर्मूला दे दिया, बोला चलो अपने डेरिवेशन तो पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कर लिया. लेकिन अभी प्रॉब्लम ये क्या है ना, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं किया है ना, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं किया. इट इज अ वेरी बिग चैप्टर, वेरी वास्ट चैप्टर. तो हम लोग है ना इसमें वो वाला डेरिवेशन करेंगे. ठीक है. तो हम लोग पूरा का पूरा डेरिवेशन सीखेंगे कि कैसे करते हैं, ताकि आप लोग के भी दिमाग में आए, रादर देन डायरेक्टली मेमोराइजिंग द फॉर्मूला, हम लोग के दिमाग में कंसेप्ट बैठ जाएगा कि एक्चुअली ये फॉर्मूला आया कैसा. ओके, एवरीवन विथ मी? फाइन. चलो गुड. अभी ध्यान दो, कोई लिखेगा नहीं कुछ, मैं ये ऊपर का टॉपिक भी रब कर देता हूं. अभी क्वेश्चन का नाम है, दैट इज derive an expression for magnetic induction at a point kept on the axis of a bar magnet outside the magnet. ठीक है. कुछ लिखो मत अभी, बस समझो. अभी है ना यहाँ पे ना हम लोग को बहुत पार्ट पार्ट में डील करना पड़ेगा, क्योंकि है ना डेरिवेशन बहुत बड़ा है और बोर्ड बहुत छोटा है. ठीक है. तो हम लोग क्या करेंगे, मैं आपको जहां जहां बोलूंगा उतना लिखोगे, फिर इरेज करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर इरेज करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे. ठीक है. ऐसे वे में हम लोग अपना डेरिवेशन में प्रोसीड करेंगे. भाई सबसे पहले क्वेश्चन समझा देता हूं मैं आपको. बोला डिराइव एन एक्सप्रेशन, मत लिखो कुछ आदित्य पाटिल, स्टॉप राइटिंग, जस्ट पे अटेंशन. डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक इंडक्शन एट अ पॉइंट kept on the axis of a bar magnet outside the magnet. मतलब क्वेश्चन से मुझे एक चीज समझ गया है कि मुझे एक्सिस पे कोई तो पॉइंट रखना है जिसपे मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना है मुझे. ठीक है. तो सबसे पहले मैं मैग्नेट बना लेता हूं. तो मैं बोलूंगा यहाँ पे एक मैग्नेट है, तो ये मैग्नेट का, अरे सॉरी यार, मैं ड्राइंग क्लास बचपन में अटेंड नहीं किया था. ठीक है. अभी यहाँ पे मैग्नेट हो गया हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास नॉर्थ पोल हो गया, यहाँ पे हमारे पास साउथ पोल हो गया. ठीक है. नॉर्थ पोल, साउथ पोल. अभी हम लोग को एक्सिस से डील करना है, तो हम बोलेंगे अ लाइन पासिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट इज कॉल्ड एज एक्सिस ऑफ द मैग्नेट. फाइन. अभी नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में होगा उसका सेंटर, दैट इज ओ. अभी साउथ पोल और सेंटर ओ का डिस्टेंस है एल, और नॉर्थ पोल और सेंटर ओ का डिस्टेंस है एल. मतलब देखा जाए तो सेंटर ओ हमारा ओरिजिन हो गया, हर एक डिस्टेंस तो वहीं से हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं. ठीक है. जैसे स्कूल टाइम में मिरर्स में पोल से हर एक डिस्टेंस कैलकुलेट करते थे ना, अभी यहाँ पे क्या कर रहे हो आप लोग, सेंटर ओ से हर एक डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हो. क्वेश्चन है, derive an expression for magnetic induction at a point kept on the axis of a bar magnet outside the magnet. मतलब एक पॉइंट है जो मैग्नेट के एक्सिस पे रखा है और मैग्नेट से बाहर रखा है, वो क्वेश्चन में हम लोग को बता दिया. तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ, यहाँ पे एक पॉइंट है दैट इज P, which is
kept on the axis of the magnet but outside the magnet. Okay, at any distance we want. इतना समझा? ठीक है, we don't know at what distance it is. So let me say the distance of point P from the center of the magnet is taken as छोटा r. ठीक है, तो पॉइंट P छोटा r के डिस्टेंस में है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट. इतना समझ गया? ठीक है, अभी पॉइंट P अगर सेंटर से छोटा r के डिस्टेंस पे है, मतलब नॉर्थ पोल से कितना डिस्टेंस पे होगा? ये वाला डिस्टेंस है r, ये वाला डिस्टेंस है l. ये कौन सा डिस्टेंस होगा? कितना होगा? r माइनस l. हाँ कि नहीं? करेक्ट ना? ठीक है, उसके बाद इसका साउथ पोल से डिस्टेंस कितना होगा? ये है r, ये है l, ये कितना होगा? कितना होगा? R plus L. R plus r प्लस क्या? ठीक है, L. r प्लस l. अभी ये हो गया r प्लस l. इतना समझा कैसे मैंने डिस्टेंस निकाला एवरीवन? अभी नॉर्थ पोल अपने स्ट्रेंथ से अपना एक मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी पे लगाएगा, हाँ कि नहीं? नॉर्थ पोल अपना एक स्ट्रेंथ यूज करेगा, अपना स्ट्रेंथ से मैग्नेटिक फील्ड लगाएगा पॉइंट पी पे. साउथ पोल भी वही करेगा, अपना स्ट्रेंथ यूज करेगा और अपने स्ट्रेंथ से पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड लगाएगा. अभी एक दिमाग लगाओगे आप लोग तो आप लोग को पता चलेगा कि नॉर्थ पोल ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लगाएगा एज कंपेयर टू साउथ पोल. क्यों बोला मैंने ऐसा? साउथ पोल दूर है ना पास वैसे, में। हाँ, तो साउथ ज्यादा पोल नहीं दूर है, लगा नॉर्थ पोल पाएगा. पास में है ना? साउथ पोल दूर है, नॉर्थ पोल पास में. तो एक बेसिक लॉजिक बनता है कि नॉर्थ पोल ज्यादा फील्ड लगाएगा एज कंपेयर टू दी साउथ पोल. ठीक है, तो हम लोग का नॉर्थ पोल पास में है तो नॉर्थ पोल ज्यादा फील्ड लगाएगा. अभी मैं बोलता हूं कि नॉर्थ पोल मैग्नेटिक फील्ड लगाएगा. द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द नॉर्थ पोल इज B1. मैग्नेटिक फील्ड हम लोग कैपिटल बी से बोलते हैं ना, तो नॉर्थ पोल का मैं बोलता हूँ दैट इज B1, साउथ पोल का मैं बोलता हूँ दैट इज B2. ठीक है, so B1 is the magnetic field due to north pole of the magnet and B2 is the magnetic field due to the south pole of the magnet. इतना क्लियर होगा सबको? ठीक है, B1 due to north pole, B2 to the south pole. Yes everyone? Okay, अभी नॉर्थ पोल अपना मैग्नेटिक फील्ड कैसे लगाएगा? नॉर्थ का जो भी फील्ड है, जैसे नॉर्थ है साउथ है, नॉर्थ से ये बाहर की तरफ निकलता है फील्ड, हाँ कि नहीं? नॉर्थ से ऐसे बाहर की तरफ निकलता है ना, लाइंस ऑफ फोर्स. तो नॉर्थ पोल अपना जो स्ट्रेंथ है वो कैसे लगाएगा? इन दी आउटवर्ड डायरेक्शन. तो इसको मैं बोलूंगा B1 बार. इतना समझा? नॉर्थ पोल का जो भी स्ट्रेंथ रहेगा इट विल बी इन द आउटवर्ड डायरेक्शन. साउथ पोल पे जो भी लाइंस ऑफ फोर्स है वो कहाँ आता है? अंदर की तरफ, हाँ कि नहीं? अंदर आता है ना, तो साउथ पोल अपना फील्ड कहाँ लगाएगा? अंदर की तरफ. सो साउथ पोल का फील्ड रहेगा इन द इनवर्ड डायरेक्शन, दैट इज B2 बार. इतना समझा? मैंने वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया दोनों का डायरेक्शन. तो नॉर्थ पोल अपना फील्ड लगाएगा इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, बिकॉज नॉर्थ पोल से तो लाइंस ऑफ फोर्स निकल रहा है बाहर की तरफ, इसलिए वो लगाएगा बाहर की तरफ. साउथ पोल में तो लाइंस ऑफ फोर्स अंदर की तरफ आ रहा है, इसलिए उसका फील्ड कहाँ रहेगा? अंदर की तरफ. तो B1 हो गया बाहर की तरफ, B2 हो गया अंदर की तरफ. इतना लॉजिक क्लियर है सबके ऊपर? करेक्ट. अभी दोनों साथ में मिलके एक रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड देगा. वो जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा इट विल बी B एक्सिस, दैट इज मैग्नेटिक इंडक्शन एट द एक्सिस. इतना समझा एवरीवन? क्लियर? ठीक है, अभी सब लोग पहले ये डायग्राम ड्रॉ कर दोगे, फिर मैं डेरिवेशन से प्रोसीड करूंगा. अच्छे से डायग्राम ड्रॉ करना, सुंदर, स्वच्छ और सुशील.
सर बोलो। बी एक्सिस क्या होता है? टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन ऑन द एक्सिस, नॉर्थ पोल और साउथ पोल का टोटल बी एक्सिस। ओके सर। ठीक है, डायग्राम हो गया सबका? एवरीवन डन विद द डायग्राम? डायग्राम अच्छे से बनाओ, क्योंकि आगे मैं ये रब करने वाला हूँ, तो आप लोग का ही डायग्राम का रेफरेंस है, आप लोग को मुझे सारे के सारे वैल्यूज बताने। सर एक मिनट। राइट सर। साइड इधर से क्या लिख रहा है? डन डन डन। यस हुआ क्या? सर पेपर चेक हुआ। सर डन डन। करता हूँ करता हूँ। ठीक है, आइए ध्यान दो, मैं बोलूंगा, सब लोग लिखना बंद करो, ड्रॉ करना बंद करो। लेट B1 बी मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू नॉर्थ पोल of the magnet, and B2 be magnetic induction due to south pole of the magnet। पहले लिख देने का कि हम लोग B1 किसके लिए ले रहे हैं, B2 किसके लिए ले रहे हैं। तो हम लोग बोलेंगे therefore resultant magnetic induction or field is given by, okay, resultant magnetic induction हम लोग को कैसे मिलेगा? resultant magnetic induction B axis will be equal to B1 plus B2। इतना दिमाग में बैठा सबके? ठीक है, मैं अभी स्केलर में ही पूरा डेरिवेशन करता हूं, तो जो डेरिवेशन होता है ना, वेक्टर में नहीं होता, स्केलर में होता है। ठीक है, अगर मेरे को इसको वेक्टर में लिखना होता ना, तो मैं कैसे लिखता? मैं लिखता बी एक्सिस का बार इज इक्वल्स टू B1 बार माइनस B2 बार, क्योंकि एक जा रहा है आगे, दूसरा जा रहा है पीछे, तो वेक्टर में मेरे को साइन कन्वेंशन भी लेना पड़ता। ठीक है, तो मैं अभी किस में लिख रहा हूं? मैं स्केलर में लिख रहा हूं, तो B1 प्लस B2, सिंपल। अभी B1 है नॉर्थ पोल की वजह से, समझो। हाँ, इसका वैल्यूज कैसे लिखूंगा? B1 is equals to, whenever we are dealing with the magnetic field, one thing should always come into consideration, that is mu naught upon 4 pi। mu naught upon 4 pi is a constant of your magnetic field। magnetic field का constant है mu naught upon 4 pi। अब mu naught का मतलब क्या होता है? mu naught का मतलब होता है permeability of free space। क्या मतलब होता है? permeability of free space। ठीक है, permeability of free space। भाई permeability का मतलब क्या होता है समझो। अभी आप लोग के मैग्नेट ने या कोई भी करंट कैरिंग कॉइल ने मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? आजू बाजू फैलने को ट्राई करेगा, इट विल ट्राई टू स्प्रेड इन द स्पेस, है ना। आजू बाजू जितना भी स्पेस है उधर पूरा स्प्रेड होने को ट्राई करेगा। अभी होगा क्या? आजू बाजू जो भी सराउंडिंग है उसमें क्या है? एयर है, एयर है ना, है ना। ठीक है, सो आजू बाजू एयर है, तो आजू बाजू एयर है, एयर ऑलवेज ऑफर्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस। एयर हमेशा रेजिस्टेंस ऑफर करता है। बहुत तेज हवा चलने लगे, आप लोग नीचे उतरो, चलना स्टार्ट करो, तेज हवा होगी तो आगे चलने में प्रॉब्लम होगी, करेक्ट। मतलब एयर हम लोग को भी रेजिस्टेंस ऑफर करता है। अगर एयर हम लोग को रेजिस्टेंस ऑफर कर सकता है, मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड को भी रेजिस्टेंस ऑफर कर सकता है। ठीक है, मतलब एयर ने कितना मैग्नेटिक फील्ड को रोका और कितना मैग्नेटिक फील्ड को आगे जाने का परमिशन दिया, दैट इज कॉल्ड एज परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये हमेशा आपके मैग्नेटिक फील्ड के इसमें कांस्टेंट आएगा।
ठीक है, तो जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड से डील कर रहे हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज अ कांस्टेंट, इतना दिमाग में बैठा सबके? ठीक है, सो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू, पहला ये नॉर्थ पोल की वजह से बोला है ना, नॉर्थ पोल का पोल स्ट्रेंथ क्या है? प्लस क्यू एम, हाँ कि नहीं? नॉर्थ पोल का पोल स्ट्रेंथ क्या है? प्लस क्यू एम अपॉन, हम लोग किसके ऊपर लगा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड? नॉर्थ पोल से पॉइंट पी के ऊपर लगा रहे हैं, नॉर्थ पोल से पॉइंट पी के ऊपर लगा रहे हैं, तो नॉर्थ पोल और पॉइंट पी का डिस्टेंस पहले मैं बोल देता हूं एनपी, हाँ कि नहीं? डिस्टेंस ले लिया एनपी, ओके, अपॉन एनपी का स्क्वायर। ये कहां से आ गया हमारे पास इक्वेशन? 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था केप्लर्स लॉ। केप्लर ने बोला था कि हमेशा आप लोग का डिस्टेंस का स्क्वायर होगा, बट डिस्टेंस कहां पे आएगा? डिनोमिनेटर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। याद है ऑर्बिटल मोमेंट? ठीक है, और न्यूटन ने ग्रेविटी में भी वही बोल दिया था, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग हमेशा जो डिस्टेंस होता है ना उसको डिनोमिनेटर में लेते हैं और उसका स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वही किया, डिस्टेंस मैंने डिनोमिनेटर में ले लिया और उसका स्क्वायर ले लिया। इतना दिमाग में बैठा सबके? यस। अभी सेम चीज अगर मेरे को साउथ पोल के लिए लिखना है तो मैं बोलूंगा B2 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। साउथ पोल का पोल स्ट्रेंथ क्या है? माइनस ऑफ क्यू एम, हाँ कि नहीं? नॉर्थ पोल का प्लस क्यू एम था तो साउथ पोल का माइनस क्यू एम अपॉन साउथ पोल और पॉइंट पी का डिस्टेंस है SP और उसका स्क्वायर। इतना समझा सबको? एवरीवन क्लियर विद दिस? यस एवरीवन, ओके फाइन। अभी ये दोनों वैल्यू ऊपर अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो मुझे मिलेगा B एक्सिस इज इक्वल्स टू B1 का वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू प्लस क्यू एम अपॉन NP का स्क्वायर प्लस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू माइनस क्यू एम अपॉन SP का स्क्वायर, हाँ कि नहीं? ठीक है, ये माइनस साइन को मैं बाहर निकाल दूं अच्छा रहेगा, तो मुझे मिलेगा दैट इज B एक्सिस इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई प्लस क्यू एम को मैं सिर्फ क्यू एम लिख सकता हूं, है ना? तो क्यू एम अपॉन NP का स्क्वायर माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू क्यू एम अपॉन SP का स्क्वायर। इतना दिमाग में बैठा सबके? एवरीवन क्लियर है इतना क्या किया मैंने? चलो पहले इतना कॉपी कर लो फिर आगे प्रोसीड करते हैं। सर सर बोलो। सर हमने जो NP स्क्वायर किया वो सिर्फ P को स्क्वायर होगा कि N को भी स्क्वायर होगा? NP पूरा डिस्टेंस है बेटा, ओके N और P के बीच का डिस्टेंस NP। देखो मैं ब्रैकेट के अंदर ही लिखा है ना पूरा डिस्टेंस, बाद में हम यस डिस्टेंस सर। का वैल्यू डाल देंगे। वो 4 पाई कैसे आया?
वो कांस्टेंट है, हमेशा मैग्नेटिक फील्ड में आएगा ही। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज अ कांस्टेंट। ओके, यस सर। डन 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 एवरीवन। ओके, आई ध्यान दो, प्रोसीड करते हैं आगे। ओके, अभी समझो आगे। आगे हम लोग क्या बोलेंगे, पे अटेंशन। अभी तक हम लोग कहां पहुंचे, हम लोग पहुंचे थे बी एक्सिस इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू क्यू एम अपॉन एनपी का स्क्वायर माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू क्यू एम अपॉन एस पी का स्क्वायर। हाँ कि नहीं, यहां तक हम लोग पहुंचे। ठीक है, अभी हम लोग इसका डिस्टेंस सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। एनपी, एनपी का वैल्यू क्या है, आर माइनस एल। हाँ कि नहीं, देखो देखो डायग्राम में एनपी का वैल्यू क्या है, आर माइनस एल। एसपी का वैल्यू क्या है, आर प्लस एल। मिला सबको डायग्राम में। ठीक है, एनपी है आर माइनस एल, एसपी है आर प्लस एल। तो मुझे मिलेगा बी एक्सिस इज इक्वल्स टू, क्या मैं ये पूरा टर्म बाहर कॉमन निकाल दूं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू क्यू एम इनसाइड द ब्रैकेट। ठीक है, ये पूरा का पूरा टर्म तो बाहर कॉमन निकल जाएगा। मेरे पास बचेगा 1 अपॉन एनपी का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एसपी का स्क्वायर। अभी एनपी और एसपी का वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, मुझे मिलेगा बी एक्सिस इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू क्यू एम अपॉन 4 पाई इनसाइड द ब्रैकेट 1 अपॉन एनपी का वैल्यू है आर माइनस एल द होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एसपी का वैल्यू है दैट इज आर प्लस एल दी होल स्क्वायर। ठीक है, अभी एक बार इतना कर दिया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये इधर कॉमन डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा। लिखो मत कुछ, बस ध्यान दो। मुझे मिलेगा बी एक्सिस इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू क्यू एम अपॉन 4 पाई इनसाइड द ब्रैकेट, ये हो जाएगा आर प्लस एल द होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल द होल स्क्वायर अपॉन आर माइनस एल द होल स्क्वायर इनटू आर प्लस एल दी होल स्क्वायर। इतना समझा सबको, यस और नो? ठीक है, अभी मैं क्या करता हूं, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी द होल स्क्वायर, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ए माइनस बी द होल स्क्वायर। फॉर्मूला आता है ना, ए प्लस बी द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, हम लोग बोलेंगे दैट इज बी एक्सिस इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू क्यू एम अपॉन 4 पाई इनसाइड द ब्रैकेट, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 2rl प्लस एल स्क्वायर माइनस इनसाइड द ब्रैकेट। ठीक है, ये बहुत ही क्रूशियल है, ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करना है। ठीक है, नहीं तो माइनस और प्लस में गड़बड़ कर दोगे आप लोग। हम लोग को मिलेगा आर स्क्वायर माइनस 2rl प्लस ऑफ एल स्क्वायर। हाँ कि नहीं? नीचे वाला देखते हैं, नीचे वाला क्या है, नीचे वाला है दैट इज आर माइनस एल दी होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल दी होल स्क्वायर। क्या होगा, आर माइनस एल दी होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल दी होल स्क्वायर। होल स्क्वायर भूल जाओ, अगर वो सिर्फ आर माइनस एल और आर प्लस एल है तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी। a square minus b square, it is a plus b minus a minus b, square correct? So it will be r square minus l minus square L. और the whole square, क्योंकि whole square तो पहले से ही था।
इतना समझा सबको? एवरीवन, ठीक है, इतना क्लियर है? अभी क्या करोगे, ये ब्रैकेट ओपन कर दोगे, अभी जगह नहीं है, लिखो, लिख दो ये, फिर करते हैं। गौरांग, आज कैमरा क्यों ऑफ रखा है? नहाया नहीं क्या? नहीं सर, फिर? वो कभी कभी चालू होता है, कभी कभी नहीं। अच्छा ठीक है। डन डन डन। नो सर। डन सर। 2 मिनट रुकते हैं, जिनका नहीं हुआ उनके लिए। हो गया ना? सबका हो गया, सबका हो गया, सबका हो गया, ठीक है। ये ध्यान दो, लास्ट इक्वेशन में रखता ही हूं ताकि उसी को रेफर करके मैं आगे प्रोसीड करूंगा, ठीक है। ऐसे समझो, ये हमारा लास्ट इक्वेशन यहाँ तक आया। स्टॉप राइटिंग एवरीवन, पे अटेंशन। अभी मैं इसका ब्रैकेट ओपन करूंगा, मुझे मिलेगा बी एक्सिस इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू क्यू एम, इनसाइड द ब्रैकेट आर स्क्वायर प्लस 2 आर एल प्लस ऑफ एल स्क्वायर। ब्रैकेट खुलेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, अपॉन डिनोमिनेटर तो वैसे का वैसा ही, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर दी होल स्क्वायर। इधर प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, इधर हो जाएगा प्लस एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल। मेरे पास क्या बचेगा? मेरे पास बचेगा दैट इज बी एक्सिस इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू क्यू एम, इनसाइड द ब्रैकेट 2rl प्लस 2rl अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर द होल स्क्वायर। 2rl प्लस 2rl हो जाएगा 4rl, करेक्ट? 2rl प्लस 2rl हो जाएगा 4rl। मेरे पास बचेगा बी एक्सिस इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू क्यू एम इंटू 4rl अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर द होल स्क्वायर। हाँ कि नहीं? ठीक है। अभी जोश जोश में आके 4 कट नहीं करना है, ठीक है। ध्यान दो, अभी मैं ये 4 को कैसे लिखूंगा? मैं ये 4 को लिख देता हूं इन द मैनर दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू क्यू एम। मैं 4 को 2 इंटू 2 लिख देता हूं, 2 इंटू 2 तो 4 ही होता है ना, ठीक है। तो मैं इसको 2 इंटू 2 लिखूंगा अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर द होल स्क्वायर। क्यों मैंने ऐसे किया? क्योंकि एट द प्लेस ऑफ क्यू एम
इंटू 2L। QM इंटू 2L की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? QM इंटू 2L, M. M मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ना, याद है? QM इंटू 2L इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो मैं बोलूंगा दैट इज B एक्सिस इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इधर 2 तो बचा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M इंटू R अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर द होल स्क्वायर। इतना समझा क्या आया एवरीवन? ओके, सो दिस बिकम्स वन ऑफ आवर फाइनल आंसर। हम लोग टोटल फाइनल आंसर में नहीं गए, इट बिकम्स वन ऑफ आवर फाइनल आंसर। इतना तक समझा क्या किया हम लोग ने? यस, चलो जल्दी जल्दी लिख दो ताकि हम लोग डेरिवेशन कंप्लीट कर पाए। और याद रखो ये नोट्स है ना, आप लोग अपने लिए बना रहे हो, तो अगर आप लोग को चाहिए अपने रेफरेंस के लिए तो बाजू में लिख दो ऐसा डॉट डॉट डाल के ब्रैकेट में कि हमने QM इंटू 2L की जगह M डाला है। ओके, फॉर योर ओन रेफरेंस। वैसे तुम लोग को टेस्ट का पेपर कैसे लगा? इजी था कि टफ था? सर वो 2 मार्क्स में से एक नहीं आया। अच्छा, वैसे टफ था ना पेपर? हाँ ठीक सर। क्वेश्चन छोड़ के यस सर, यस सर। ठीक ठाक। मुझे मजा आता है ऐसा टफ पेपर। अरे मैं चेकिंग भी करूंगा ना, मैं बहुत टफ करूंगा। यस सर। 10 के ऊपर दे दो। 10 के ऊपर लेके क्या करेगा? एवरेज मार्क्स से ज्यादा चाहिए ना। अच्छा, रुक जाओ, तुम सब लोग से पेपर 5 बार नहीं लिखवाया ना, देख लेना। तुमने तो फुल स्टॉप भी नहीं डाल रहेगा तो भी आधा मार्क काटूंगा मैं। ये ठीक नहीं है अरे सर। इंग्लिश की टीचर भी इतना नहीं काटती सर फुल स्टॉप पे। फिजिक्स का कटेगा अभी देखना। सर इतना भी मत काटो, थोड़ा रैम करो। देखते देखते। हो गया। वेट। जल्दी करो। जब बारिश आ रहा है मेरा वाईफाई फ्लक्चुएट हो रहा है। बस करो, अभी कैलीग्राफी कर रहे हो क्या? हो गया, बहुत हो गया। ध्यान दो। ओके, नाउ दिस इज द नॉर्मल आंसर फॉर योर बी एक्सिस। देखिए इसमें कंडीशन डालते हैं। कंडीशन क्या रहेगा? फॉर शॉर्ट मैग्नेटिक डायपोल। शॉर्ट मैग्नेटिक डायपोल का मतलब क्या रहेगा कि आप लोग का मैग्नेट बहुत ही छोटा है और पॉइंट बहुत ही दूर है। इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट मैग्नेटिक डायपोल। फॉर शॉर्ट मैग्नेटिक डायपोल आर इज फार मच ग्रेटर देन एल, क्योंकि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द सेंटर इज फार मच ग्रेटर देन द डिस्टेंस ऑफ नॉर्थ और साउथ पोल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट। ठीक है, मतलब मैग्नेट बहुत ही छोटा है एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन, तो उसको बोलते हैं शॉर्ट मैग्नेटिक डायपोल। नॉर्मल मैग्नेट बोला तो ये वाला फॉर्मूला, शॉर्ट मैग्नेटिक डायपोल बोला तो हम लोग ये कंडीशन डालेंगे, आर इज फार मच ग्रेटर देन एल देन नेग्लेक्टिंग वैल्यू ऑफ एल स्क्वायर। तो एल इतना छोटा है कि उसका स्क्वायर के वैल्यू को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, मतलब हम लोग का जो मैग्नेट का नॉर्थ पोल और सेंटर का डिस्टेंस है या साउथ पोल और सेंटर का डिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल इट इज 0.1, इतना छोटा है कि 0.1 है,
तो अगर 0.1 का स्क्वायर लेंगे तो वो उससे और छोटा हो जाएगा, है ना? तो इतना छोटा वैल्यू हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे, तो बोलेंगे नेग्लेक्टिंग द वैल्यू ऑफ एल स्क्वायर। क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा बी एक्सिस टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2mr अपॉन आर स्क्वायर माइनस 0 द होल स्क्वायर, क्योंकि एल स्क्वायर का वैल्यू मैंने नेग्लेक्ट ही कर दिया, इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0। तो मेरे पास बचेगा दैट इज बी एक्सिस इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2mr अपॉन आर स्क्वायर का स्क्वायर, हाँ कि नहीं? आर स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा? आर टू द पावर 4। यस एवरीवन, मेरे पास बचेगा बी एक्सिस इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2mr अपॉन आर टू द पावर 4। यस और नो? इतना समझा? यहाँ पे एक आर और एक आर मैं कैंसिल करूंगा, आर टू द पावर 4 से एक आर कैंसिल हो गया तो आर क्यूब बन जाएगा, हाँ कि नहीं? तो मेरे पास बचेगा दैट इज बी एक्सिस इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2m अपॉन आर क्यूब, एंड दैट बिकम्स आवर फाइनल आंसर। समझा गया? हाँ कि नहीं? यस सर। करो। डन एवरीवन? हो गया? सब लोग को समझा डेरिवेशन किया कैसे हमने? ओके, यस सर। एक पेज का तो गया होगा डेरिवेशन आप लोग का, ठीक है? तो अभी आप लोग क्या करोगे, इसका एक पार्ट हम लोग का बाकी है, दैट इज टू रिप्रेजेंट दिस इन अ वेक्टर फॉर्म। दैट इज नॉट अ बिग डील, ठीक है? तो हम लोग वी आर लैगिंग विद टाइम, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट दिस फाइनल इक्वेशन इन अ वेक्टर फॉर्म, और उसके बाद जैसे हम लोगों ने एक्सिस का डेरिवेशन किया वैसे हम लोग इक्वेटर का डेरिवेशन करेंगे। एम आई क्लियर? यस, ओके, चलो ओके रिवाइज दिस थिंग। ये कौन था? Boy, boy. चलो, ओके, बॉय 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 बॉयज बॉय बॉय, Bye, sir. Thank you. थैंक यू। बॉय सर।